Dear student, Assalamu alaikum and welcome to your social science class. Well, our today's topic is rocks and minerals. It is the subtopic of the lesson interior of our earth. So we will read about rocks and minerals in today's topic. Dear students, the earth's crust is made up of various types of rocks. Any natural mass of mineral matter that makes up the earth's crust is called a rock. So what's a rock? Any natural mass of mineral matter. कोई भी जो कुदरती मादनियाती सब्सटेंस होता है, मैटर होता है, जो ज़मीन की क्रस्ट को बनाता है, उसको हम रॉक कहते हैं. एनी natural mass of mineral matter that makes up the earth's crust is called a rock. Rocks can be of different color, size and texture. There are three major types of rocks. Number 1, igneous rocks. Number 2, sedimentary rocks. And number 3, metamorphic rocks. These are the three major types of rocks. Well, dear students, the point to remember here, there are three major types of rocks. Number 1, igneous rocks. Number 2, sedimentary rocks. And number 3, metamorphic rocks. When molten magma cools, it becomes solid. Rocks thus formed are called igneous rocks. So first of all, we will talk about the igneous rocks. Igneous, the word origin of the word igneous is, it's a Latin word. Igneous is a Latin word. Igneous meaning is fire. It means fire. It's a Latin word. Igneous is a Latin word meaning fire. And sedimentary is also a Latin word. It means it is derived from the Latin word sedimentum, meaning settle down, to settle down. When things settle down, they form the layers. These layers, when become harder, form the rocks, which are called sedimentary rocks. Metamorphic is a Greek word. Metamorphos, it is derived from metamorphos, meaning change of form. So first of all, we will talk about the igneous rocks. When the molten magma cools, it becomes solid. जब लावा जो किसी आतिशफशां से निकलता है, जब वो कूल डाउन हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो फिर वो हार्ड और सॉलिड बन जाता है. तो उससे जो रॉक बनती है, रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड igneous rocks. उन रॉक्स को, उन चट्टानों को हम igneous rocks कहते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स. बुनियादी जो चट्टानें होती हैं वो यही igneous rocks होती हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ igneous rocks. Intrusive rocks and extrusive rocks. These are the two major types of the igneous rocks. Intrusive rocks and the second, extrusive rocks. Can you imagine lava coming out from the volcanoes? ये जो volcano होते हैं, आतिशफशां जो होते हैं, जब उनसे लावा बाहर निकलता है तो वो बहुत ही गर्म होता है, बहुत गर्म होता है, वो स्टीम होती है उसमें. तो आप ज़रा उसको इमेजिन करें. लावा इज़ एक्चुअली फायरी रेड मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस. ये असल में एक आग का एक दरिया होता है. जो मोल्टन मैग्मा होता है वो इस आग के दरिया की शक्ल में निकलता है. ज़मीन की अंदरूनी सतह से ये बाहर निकलता है, ज़मीन की सरफेस पर, सतह पर आता है. When this molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. फिर ये जब ज़मीन की सतह पर आता है तो बाहर
ज़मीन की सतह पे आने के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता ठंडा हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है और ये सॉलिडिफाई हो जाता है, इसकी चट्टानें बन जाती है, ये सख्त हो जाता है. रॉक्स फॉर्म्ड इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. तो इस तरह से ज़मीन की सतह पर जो चट्टान बनती है, जो पहाड़ इससे बन जाता है, तो इनको हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं. एक्सट्रूसिव इग्नियस rocks. So extrusive igneous rocks are these are the rocks formed by the molten magma that comes out from the interior of the earth and solidifies and cools down and solidifies on the surface of the earth. It is called extrusive igneous rock. They have a very fine grained structure. For example, basalt. Basalt इसकी एक मिसाल है. The Deccan Plateau is made up of basalt rocks. ये जो Deccan Plateau है इंडिया का, तो इसमें basalt rocks, बहुत सारी basalt rocks पाई जाती हैं. ये इन्हीं rocks का बना हुआ है, इन्हीं basalt rocks का बना हुआ है. तो ये basalt rocks जो हैं ये extrusive igneous rocks की examples हैं. Sometimes the molten magma cools down deep inside the earth. अब दूसरी सूरत ये है कि कभी कभी ये जो molten magma होता है ये inside the earth ही, ज़मीन के अंदर ही ये cool down हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, इसको बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता, तो ये ज़मीन के अंदर ही cool down हो जाता है. It cools down deep inside the earth's crust. अर्थ के क्रस्ट के अंदर ही ये कूल डाउन हो जाता है. Solid rocks so formed are called intrusive igneous rocks. तो इस तरह से ज़मीन की सतह के नीचे जो सॉलिड रॉक्स बन जाती हैं उनको हम intrusive igneous rocks कहते हैं. जो ज़मीन के बाहर रॉक्स बनती हैं उनको extrusive igneous rocks कहते हैं, और जो ज़मीन की क्रस्ट के अंदर रॉक्स बन जाती हैं मोल्टन मैग्मा से उनको हम intrusive igneous rocks कहते हैं. So is that clear? Since they cool down slowly, they form large grains. Granite is an example of such a rock. तो ये जो ज़मीन के अंदर जो रॉक्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता, बहुत आहिस्ता आहिस्ता ये कूल डाउन हो जाती हैं. तो इस तरह से ये बहुत बड़े बड़े ग्रेन्स जो इनके लार्ज ग्रेन्स फॉर्म होते हैं, तो इनसे जो रॉक्स बनती हैं उनको हम ग्रेनाइट कहते हैं. जैसे ग्रेनाइट रॉक है वो इसकी एक मिसाल है. ग्रेनाइट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सच ए रॉक. इग्नियस, ये जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है इसकी एक मिसाल है ग्रेनाइट रॉक. ग्रेनाइट grinding stones used to prepare paste, powder of spices, and grains are made of granite. ये जो ग्रेनाइट होता है ये बड़ा सख्त होता है, बड़ा ये सॉलिड रॉक होती है, तो इसको हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को ग्राइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. वी यूज़ ग्रेनाइट रॉक्स टू grind different things like paste, powder, spices, etc. इसको हम यूज़ करते हैं ग्रेनाइट रॉक्स को इन चीज़ों को पीसने के लिए. ठीक, क्योंकि ये जो ग्रेनाइट होता है ये बड़ा मतलब इस बड़ी बड़ी सख्त किस्म की ये रॉक होती है. रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स. अब वक्त के साथ साथ ये जो रॉक्स होती हैं जब रोल डाउन हो जाती हैं, ये जो ढलानों से गिर जाती हैं इधर उधर, इनमें क्रैक्स वगैरह भी हो जाते हैं. ये जब रॉक्स एक दूसरे को हिट करती हैं तो इनमें क्रैक्स पैदा हो जाते हैं और ये ब्रोक डाउन हो जाती हैं. इनके छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनते हैं, छोटे छोटे पीसेस भी बनते हैं. दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स. ये छोटे छोटे जो पीसेस इनके बनते हैं इनको हम कहते हैं सेडिमेंट्स, जो कि हम दरियाओं वगैरह में देखते हैं ना, सेडिमेंट्स इनको कहते हैं. These sediments are transported and deposited by wind, water, etc. ये जो सेडिमेंट्स होते हैं ये वाटर के ज़रिए से, दरियाओं के ज़रिए से या विंड के ज़रिए से इधर उधर इनको ले जाया जाता है और कहीं पे इनको डिपॉजिट किया जाता
है. These loose sediments are compressed and hardened to form layers of rocks. तो ये जब किसी जगह डिपॉजिट हो जाते हैं फिर ये कंप्रेस हो जाते हैं और सख्त हार्डन हो जाते हैं. इनकी ये लेयर्स जो होती हैं ये कंप्रेस हो जाती हैं और सख्त बन जाती हैं. तो ये एक लेयर्स ऑफ रॉक्स फॉर्म करते हैं. इनकी ताहदार चट्टानें बनती हैं. लेयर्स ऑफ रॉक्स. दीज टाइप्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स. तो इन रॉक्स को ये जो लेयर्स में होती हैं इनको हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स. फॉर एग्जाम्पल sandstone is made from grains of sand. These rocks may also contain fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them. तो इस तरह से इनमें से इनके साथ ये जो फॉसिल्स होते हैं वो भी इन रॉक्स के साथ मिले हुए होते हैं, या एनिमल्स वगैरह इनके जो या और बाकी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं उनके जो बाकियात होते हैं वो भी इन रॉक्स सेडिमेंट्री रॉक्स के साथ मिले हुए होते हैं. तो इन सब को मिलके ये जो रॉक बनती है ये लेयर्स ऑफ रॉक फिर ये कंप्रेस हो जाती हैं, सख्त बन जाती हैं. तो इनको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं. तो सेडिमेंट्री रॉक्स इसी तरह से फॉर्म हो जाती हैं. तो इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं दे कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर. यही दो रॉक्स जो हैं, एक इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाती हैं. जब इनको ग्रेट हीट और प्रेशर इन पे पड़ता है तो ये चेंज हो जाती हैं किन में? मेटामॉर्फिक रॉक्स में. फॉर एग्जांपल क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड limestone changes into marble. So marble and slate, they are termed as, or they can be said as metamorphic rocks. They are the examples of metamorphic rocks. So I think it's clear. So we conclude it here today. अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि बाकी जो मिनरल्स वगैरह इनके बारे में या रॉक्स के बारे में फर्दर जो डिटेल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. टिल देन गुड बाय. थैंक यू वेरी मच.